Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we see our next topic, that is the default argument. So let's start. In last video, we see about function overloading and functional prototyping, function inline functions. In this video, we see what are the default arguments. So let's start. C++ allows us to call a function without specifying all its argument. In such cases, the function assigns a default values to the parameter which does not have a matching argument in the function call. Default values are specified when the function is declared. अब देखिए यहाँ पे जो अब यहाँ पे एग्जांपल है फ्लोट अमाउंट. यहाँ पे हमने पैरामीटर कुछ पैरामीटर पास किए एक फंक्शन में, राइट. बट here I initialize that float variable, that is rate, as a 0.15 which is the default argument जो हम पैरामीटर के साथ भेज रहे हैं डिफॉल्टली. ठीक है. अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी है, सिंपली क्या कर रहे हैं हम पैरामीटर को सिंपली पैरामीटर में ही हम वैल्यू पास कर रहे हैं, राइट. So when we pass the value that when we call that function, so we does not need to call that value on that function. Okay, so that only the trailing argument can have the default value, that is we must add default from right to left. We cannot provide a default value to our argument in the middle list. Okay, so let's program this program one. We do one program where we use the default arguments. So let's move. Okay, so 1 minute. This is our compiler, that is Turbo C++. It's take time. Okay, क्या हुआ देखना पड़ेगा. Okay, okay, here we start Turbo C++. Next. Okay, so we start with new file. अब देखिए यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम करूँगा to write a program for default arguments. Or default argument in function. So I here clear all these things. Shit. So I clear first these all things. Okay, hit clear. Okay, and to write a program for default or argument in function. ठीक है.
अब यहाँ पे हम एक फंक्शन डिराइव करेंगे नाउ। अब यहाँ पे हम जो भी फंक्शन करें, चलो हम यहाँ पे करते हैं फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सो आई सेड int void, no sorry, int area circle. Okay, so here we pass the argument that is integer, which is radius, integer value, integer I called him integer r. Okay, so which is the radius, so radius बोल देते हैं, radius. Okay, and what we require, the pi value which is constant. So we here initialize float is equal to float pi is equal to 3.40. Okay, so this is our function prototype. Okay, we called him function prototype. Okay, now we have to first डिफाइन लॉजिक। मैं यहाँ पे सिंपली एक लॉजिक डिफाइन करूँगा, इंटीजर इंट एरिया सर्कल इंट रेडियस एंड फ्लोट पाई। सो 3.40. Okay, so what is our return? What is our radius? 2 pi r. Okay, 2 pi r square, right? So area of circle is pi r square. So what is our pi? Pi into radius. Okay, so here we pass the value that is only radius. We don't have to pass the float value because we have already initialized there, so it is the default argument. Okay, वो जो है हमने क्या किया है कि अब यहाँ से मैं सिर्फ रेडियस की वैल्यू को पास करूंगा, राइट। अब यहाँ पे मुझे फ्लोट की वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, सो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफॉल्ट ही उसकी वैल्यू पुटअप कर दी है। सो जो भी उसकी वैल्यू होगी 3.14 वो डायरेक्टली ले लेगा which is the default argument. मैंने उसे डिफॉल्ट कर दिया है, राइट। we have to initialize the pi value as a default. Okay, so here we pass the value now. Okay, so let's code some clr scr that is clear the screen and cout, enter the radius. Okay, so our radius should be seen, that is here I declare one in integer value, that is r. Okay, so here I pass r. Okay, I told r. Okay, so अभी यहाँ पे हमें एक फंक्शन को कॉल करना है, cout area of circle is here I said area circle r. Okay, so let's compile it. Okay, यहाँ पे मैं वैल्यू को रिटर्न करना है, राइट। सो हियर आई सेड get ch and return
return what? 0. Return 0. Okay, so compile it. First we have to save it. Save as default argue dot cpp. Okay, so compile it. Okay, what parameter part? So here here is one error. I show you what is that. Okay, so here I compile first compile function. See, see. So here it shows the default argument value declared for parameter part. अभी जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर ऑलरेडी उसे डिक्लेयर किया है प्रोटोटाइप में, राइट? फंक्शन प्रोटोटाइप में उसको ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, सो यहाँ पे हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे और एक लॉजिकल एरर है, वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? सो यहाँ पे सिंपली हम पाई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और यहाँ से सिर्फ एक ही, देखिए यहाँ पे मैं पास क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रेडियस को पास कर रहा हूँ, राइट? सो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने डिफॉल्टली उसे सेट कर दिया है प्रोटोटाइप में, राइट? सो we don't need no need to pass that value from main function. Okay, so Alt C, compile, and now we run it. Okay, done. So I will pass 7, sorry 5 को पास करते हैं, right? 5, so it is 78. एक्चुअली इसका जो एरिया होना चाहिए था वो 78.5 होना चाहिए था, लेकिन उसने 78 लिखा बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो हमने इस पर रिटर्न टाइप दिया है वो जो भी हमारा फंक्शन है वो इंटीजर है, राइट? सो वी हैव टू पास फॉर हियर फ्लोट, सो वी गेट रिजल्ट ऑन द फ्लोट। सो ये एक हमारा लॉजिकल एरर था, इट्स कॉल्ड अ लॉजिकल एरर। सो यहाँ पे मैं फ्लोट फंक्शन फ्लोट टाइप करूँगा, सो जो भी इसका रिटर्न टाइप होगा वो फ्लोट होगा, मतलब पॉइंट में वो वैल्यू लेगा, राइट? सो Alt C, compile, right? Now run. Now radius is 5. देखिए वहाँ पे 78 था, अब यहाँ पे 78.5 आ गया क्योंकि हमने रिटर्न टाइप क्या किया है, फ्लोट कर दिया है, राइट? सो दिस इज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, सो मूव टू अवर नेक्स्ट our slide. Okay, so our next topic is array in C++. array, अब देखिए हमने अभी तक क्या देखा कि जो भी अभी तक हमने क्या देखा था कि फंक्शन विच इज द डिराइव्ड डेटा टाइप, हमने डेटा टाइप कौन से देखे, बिल्ट इन डेटा टाइप कौन से थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब क्या थे, बिल्ट इन डेटा टाइप। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप। फंक्शन इज ऑल्सो द डिराइव्ड डेटा टाइप। सो आवर नेक्स्ट डिराइव्ड डेटा टाइप इज array. Okay, so let's see. An array is a collection of identical objects which are stored in a consecutive memory location. सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेमोरी क्या होती है, क्योंकि जब तक मेमोरी के बारे में आप समझेंगे नहीं तब तक आपको ये एरे के बारे में उतना क्लियरिटी नहीं आएगी, राइट? सो देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, राइट? दिस इज आवर प्रोग्राम। प्रोग्राम कह लीजिए या फिर सोर्स कोड कह लीजिए। ओके, ठीक है। सो जब भी हम जब इसको रन करते हैं, सो इट ऑक्यूपाई, या फिर कोई भी अगर इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अभी हम प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ओके, सो
जब भी हम यहाँ पे कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँगा इंट ए, सो ये क्या करता है, एक प्रॉपर मेमोरी अलोकेट हो जाती है इसके लिए मेमोरी डिवाइस में, राइट। सो यहाँ पे ये मान लो मेमोरी है हमारी, राइट। मेमोरी में वो एक डेटा उस डेटा को स्टोर कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंट ए करूँगा, यहाँ पे इंट ए को मान लेते हैं, तो इंटीजर ए, सो इट ऑक्युपाइज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ओके, ये कितनी ऑक्युपाई करेगा, 2 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। एक मिनट 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि इसका टाइप कौन सा है, इंटीजर टाइप है। सो इसका कि ये इंटीजर कितना असाइन करता है, 2 बाइट्स। ओके, सो यहाँ पे ए के लिए कुछ यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी, राइट। सो यहाँ पे जो भी मैं इसमें वैल्यू स्टोर करूँगा, अगर यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ए इज इक्वल टू 10। ओके, सो यहाँ पे मेमोरी में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, कहाँ पे, यहाँ पे 10, ठीक है। और इसका एक हर मेमोरी का एक एड्रेस होगा। हियर इज देयर एड्रेस, हर मेमोरी का एक एड्रेस होगा, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये देख लीजिए, अब ये एड्रेस होगा। सो हर इसका एक एड्रेस होगा, उसका एक मेमोरी ब्लॉक होगा, जैसे कि अगर जो भी उसका डेटा टाइप होगा उसके हिसाब से वो मेमोरी को डेटा को मेमोरी असाइन करेगा, राइट। अभी इंटीजर टाइप है, सो इट ऑक्युपाई 2 बाइट्स ऑफ डेटा मेमोरी एंड असाइन दैट 2 बाइट्स। ओके, सो इस तरह से उसको किसी भी डेटा को मेमोरी एलोकेट की जाती है। अब प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम का जो भी होगा, जो भी कोड होगा, उसका कोड का मेमोरी साइज कितना होगा, उसके हिसाब से वो असाइन करेगा, राइट। सो दैट इज द नथिंग बट मेमोरी एलोकेशन। ओके, सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं एरे क्या है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर स्टोर्ड इन अ consecutive memory location under the common variable name. Array must be declared. It is used C++ program. The general form for declaration is the one-dimensional array is storage. इसका syntax देख लीजिए, array name and expression, और data type array name and expression. Okay, the store class can either external, static or automatic. The data type is data type of the elements of the array. अब ये array जो है ये क्या है, similar collection of data type। जैसे कि देखिए, इसे क्लियर कर देता हूँ। ये क्या करता है, डेटा को कॉन्जिक्यूटिवली स्टोर करता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक एरे है, एक मेमोरी अलोकेट की गई है एक ही वेरिएबल को, आई कॉल्ड इट एरे वेर। ओके, एरे वेर, ओके, दिस इज आवर वेरिएबल नेम। अब इसी को मैंने अगर एक प्रॉपर मेमोरी अलोकेट की है, कितना, एक 10 ब्लॉक का। ओके, सो यहाँ पे मैं एक दैट इज 10। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक एरे वेरिएबल को, अब इसका डेटा टाइप भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो इंटीजर, सो आई सेड इट इंटीजर। ओके, सो इंटीजर टाइप का ये एरे है, राइट। एरे मतलब कलेक्शन ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप। अब यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो इंटीजर का ही होगा। यहाँ पे हम फ्लोट इनिशियलाइज नहीं कर सकते, राइट। इनिशियलाइज करने के बाद भी वो फ्लोट नहीं लेगा, इट ओनली टेक्स द इंटीजर। अगर मैं 78.5 अगर यहाँ पे डालूंगा तो ये सिर्फ 78 लेगा, 0.5 को नहीं लेगा, राइट। सो ये क्या करेगा, सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप को ही असाइन करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लेता हूँ देन इट ओनली टेक पॉइंट वैल्यूज। ओके, सो अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि ARR वेर नाम का कोई इंटीजर टाइप का एरे है,
और उसको मैंने 10 मेमोरी अलोकेट की है। सो इंटीजर कितना स्पेस अलोकेट करता है? 2 बाइट्स। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं मेमोरी ब्लॉक बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। सो ये रहेगा एक एरे, राइट। अब यहाँ पे जो भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ कि मुझे एक ही इसमें ब्लॉक में सभी वैल्यूज डालने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके। सो अब ये जो है यहाँ पे मैंने डेटा पुटअप कर दिया, लेकिन अब ये जो डेटा मैंने पुटअप किया इसका एक प्रॉपर लोकेशन रहेगा। अब वो लोकेशन क्या रहेगा? इसका एक बेस एड्रेस होगा, दैट इज द 0 1 मिनट, that is 0, then 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। सो ये जो है ये इसके एड्रेसेस है, जो नीचे है वो उसका लोकेशन है कि किस लोकेशन पे वो डेटा स्टोर किया गया है, राइट। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, अगर ARR Y VAR विच लोकेशन, 5th लोकेशन पे अगर मुझे कोई भी डेटा ढूंढना है तो मुझे कौन सा डेटा मिलेगा? सो आई गॉट 6 नॉट 5th, क्योंकि मैं जो भी एरे वेरिएबल है वो इंडेक्स को सर्च करता है, ये है उसका इंडेक्स, राइट। उसमें इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है ये उसके लोकेशन को ट्रेस करेगा, राइट, ना कि वैल्यू को, राइट। सो अगर मुझे ये अगर उसमें का कोई उस मेमोरी ब्लॉक का कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे उसके एड्रेस को एक्सेस करना पड़ेगा। सो अगर मैं एड्रेस को एक्सेस करूंगा देन एंड ओनली देन वी गेट दैट नंबर। अगर मुझे एरे इंटीजर एरे 5th लोकेशन का मुझे अगर कोई भी डेटा फाइंड आउट करना है, सो मुझे इस तरह से उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो आई गॉट अ प्रॉपर वैल्यू। सो वैल्यू शुड बी वैल्यू वुड बी 6। सो हम मुझे 6 मिलेगा। अगर मुझे कोई भी अगर पोजीशन में जैसे कि मुझे मान लो कि 7th पोजीशन में मुझे अगर 8 को एक्सेस करना है, अगर से 8 नंबर को एक्सेस करना है, सो मैं क्या करूँगा, उस लोकेशन को फाइंड आउट करूँगा। सो अगर मैं कहूँगा AR और Y VAR, दैट लोकेशन इज 7, लोकेशन इज 7, सो इट गॉट मी 8। ओके। सो इस लोकेशन पे, ये जो लोकेशन है इस लोकेशन पे मेरा कौन सा नंबर प्लेस किया गया है? 8 नंबर का, राइट। यहाँ पे मैंने 8 नंबर के वैल्यू को प्लेस किया है। सो दैट इज द एरे। ओके। सो इसको हम कल और पढ़ेंगे क्लियरिटी से। सो टुडे वी स्टॉप हियर स्टूडेंट।
In next video, we see about its program, how to implement in array. Okay, so वहाँ पे मैं और समझाऊंगा इसके बारे में, और इसके बाद मल्टी डायमेंशनल array के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले array के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद वो देखेंगे। ओके, सो स्टे सेफ एंड गुड बाय।